Hello. ऐप पे ऑन हो गई भैया क्लास? तो ऐप पे लाइव नहीं जाएगी? मतलब आपने तो कर दी ना, शुरू तो कर दी ना, हमारे पास एक्सेस नहीं है, वो अलग कहानी है। इसके लिए आपने मेरे बेशकीमती 15 मिनट ज़ाया किए। हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस कैन हियर मी। वेलकम टू द क्रैश कोर्स, जहाँ पर वी विल प्रिपेयर फॉर ऑल द डिजाइन एग्जामिनेशंस इन जस्ट 45 days. Right, so it's very interesting, बहुत ही सब कुछ, we'll try and cover everything that is possible, and we will give you good insights into what comes into the examination and what all you can expect, uh, once you prepare for the exam. So if I talk about this subject, which is drawing, we are going to be catering to, if you look at the syllabus, for example, so you would see compositions, you would see things like object drawing, you would see things like comic strips, and you would see things like एग्जैक्टली आपको सिलेबस देखकर कभी समझ में नहीं आ सकता है कि टॉपिक कौन कौन से होंगे. सो वी हैव ब्रोकन डाउन those topics for you, and they include perspective drawings, they include principles of design, they include elements of design, they include conventional, unconventional design, they include human anatomy and all these things. So इन सब चीजों पर हम लोगों को इन एग्जाम्स में जज किया जाता है, राइट? सो एनआईडी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इम्पॉर्टेंट. Okay, conventional, unconventional uses are important. Talking about USEED and NIFT and NID, all three are based on imagination, visual memory, and drawing from memory. Or you would be given a circumstance, you would be given a situation, and you would be asked to draw. Right? अब आप उसको कैसे draw करोगे, कौन से perspective में draw करोगे, is something which you might not have thought of, but we will give you that path where you will be sure of how to break down a question, how to understand it, and how to go about solving that particular question. ठीक है? सो आज के लिए हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन. यू मस्ट हैव अभी मुझे क्या करना है? We are trying to solve a technical issue. Give us 5 minutes and we'll be back.
हेलो, हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। क्लास कंटिन्यू करें फिर आप? ठीक है, ठीक है, let's resume with the principles of design. So what is a principle? The essential question is कि principle क्या होता है? लाइफ में भी हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं. सो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फंडामेंटल गाइडलाइंस होती हैं हमारी, जिनको हम फॉलो करते हैं, विच लीड विच हेल्प अस लीड अ गुड लाइफ, है ना. फॉर एग्जाम्पल, चोरी नहीं करना या झूठ नहीं बोलना. इट्स झूठ नहीं बोलना कुड बी अ प्रिंसिपल इन लाइफ. इट कुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल जो आपको ये बताएगा कि झूठ बोलना गलत है. तो सिमिलरली डिजाइन के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं सो दैट वी आर एबल टू गेट अ गुड डिजाइन. ठीक है. नाउ, principles of design can be defined as fundamental guidelines जो help करता है to create harmony and designs which are aesthetically pleasing and which make compositions effective. ठीक है. तो अगर हम कुछ भी randomly बनाएंगे, it might not connect that well with the audience और जो हमारा end user है. For example, let's say Google है. So once we go to the Google का page, Google लिखा हुआ होता है and then there is a search bar. उसमें लिखा होता है search here and then you have a magnifying glass for search. Right now, it makes very easy and it makes simple for the user to understand and at the same time आपका Google भी बहुत prominently आता है, आपका search bar भी बहुत prominently आता है और दोनों जो है एक मोबाइल फोन के स्क्रीन पे या एक लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको बैलेंस रखते हैं. राइट. अब अगर यही हमने भर दिया होता, यहाँ पर भी कुछ 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 होता, there would have been a lot happening here. So this might have been, it could be less prominent in that case. ये उतना निखर के नहीं आता. It would not stand out the way it stands out at this point in time. है ना? So what tells us that what could be a good design? Where to stop? What is negative space? How to enjoy the negative space? What is positive matter in a design? उसको कैसे एंजॉय करना है, वो सब चीजें हमें हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन बताते हैं. So we'll quickly run through the principles and then I will go to addressing your questions. ठीक है? We still have some time. We lost 5-10 minutes to the tech issue, but that's okay. So we have balance, contrast, emphasis, movement, pattern, rhythm, unity, proportion, variety, and alignment. Now these words you must have heard a lot of time in a lot of contexts. जैसे हमने बैलेंस के बारे में सुना होगा, अरे साइकिल पे बैलेंस करके चलो, अरे स्कूटी पे बैलेंस नहीं रहा मैं गिर गया, है ना. So we might have heard these things but in different contexts. Or we might have heard कि let's say we go to a शॉप वाले ने एक तरफ वेट रख लिया, एक तरफ सब्जी रख ली, बैलेंस करके हमको उसका इक्वल दे दिया, है ना. या मैंने किसी को 100 रुपए दिए और उसने मुझे 10 रुपए के 10-10 नोट दिए, तो वो बैलेंस आउट हो गया, है ना. तो वो कैसे होता है? तो बैलेंस तो हमने बहुत बार सुना होगा, या हमने सुना होगा कि मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 रुपए खर्च दिया, नाउ द बैलेंस आई हैव विद मी इज 50 रुपीज, है ना. सो बहुत अलग अलग कंटेक्स्ट में हमने बैलेंस के बारे में सुना है, बट लेट्स लुक एट बैलेंस इन डिजाइन का कंटेक्स्ट. सो
बैलेंस जो है इट रेफर्स टू द विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट. लेट्स से जैसे मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया. सो गूगल बड़ा बड़ा प्रोमिनेंट लिख के आता है और उसके साथ एक पतला लंबा सा सर्च बार, सर्च हियर व्हिच टेक्स अप द स्पेस. तो विजुअली इट इज अ बैलेंस्ड पेज जिसमें गूगल एक अच्छा स्पेस लेता है और सर्च बार एक पतला लंबा स्पेस ले लेता है. तो गूगल कंसोलिडेटेड हो जाता है बट बड़ा है, और सर्च बार पतला है बट लंबा है, राइट? तो विजुअली वो कंपोजिशन, वो पेज हमें बैलेंस लगने लगता है. Now balance could be symmetric, it could be asymmetric, or it could be radial. Now what is the difference? Symmetric balance means, let's say we have a piece of paper. So we have three pieces of papers here. One is where I divide the paper through an imaginary line, and whatever is on the left hand side of the paper is on the right hand side of the paper. That balance would be symmetric balance. Asymmetric balance would be if I divide the page through an imaginary line, if there is one big circle happening, some small circles would be happening, जैसे एक 100 रुपए का नोट और 10 रुपए के 10 सिक्के. तो विजुअली अगर ये एक बड़ा सा एरिया ले रहा है, ये छोटे सर्कल्स भी उतने ही एरिया को कवर कर रहे हैं. सो दिस इज asymmetric balance. And then finally we have radial balance, where everything seems to move towards the center. Right? So this would be radial balance. Got it? Now, if I look at balance in architecture, look at this particular image here. If I divide it, so whatever is happening here, exact same thing is happening on the right hand side of the image, which means कि मेरा जो building है वो balanced है. Similarly, अगर मैं इस वाली building को देखती हूँ and I draw a line, तो यहाँ पे asymmetric balance है. The huge cuboid is there, but the positioning is not exactly the same. So यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, but overall it is balanced. Okay? Moving on, before we move, I'll address a few questions which we have. Previous year enough to prepare for UC. It does give you an insight into the paper and the pattern. But yes, we have a lot of other mock papers based on that. And we have a lot of situation tests as well, so which will help you prepare better for that. ऐप पे क्लास नहीं चल रही, we'll have to check that. I'm sure चल रही होगी अभी तक. PYQ वीडियो कब स्टार्ट होगा? PYQ वीडियो I think we'll have to check and get back to you on that. Should you focus more on product or scenario in perspective? So you have to focus on both things, because जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है वो दोनों में होता है. पर्सपेक्टिव के सवाल भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्ट ड्राइंग और प्रोडक्ट डिजाइन के सवाल भी पूछे जाते हैं. So now that we have addressed these questions, let's move on. We have contrast. अब contrast क्या होता है? So sometimes we wear a black with a white. Sometimes we wear, जैसे आजकल you know this autumn season. So autumn season में what is the trendy color combo? It's gray and maroon. Or you can say wine red, which is the color of the season, right? So ये जो colors हैं ये एक दूसरे को complement करते हैं और stand out करते हैं, and that is why एक contrast create होता है. So क्या होता है contrast? जिसमें दो elements use होंगे.
कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है. सो कभी भी अगर आप कभी एलिमेंट में चेंज करो, सो लेट्स से अगर मेरा एक डिजाइन चल रहा है और मेरे उस डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक शेप यूज हो रहा था, तो दूसरा शेप इनकॉर्पोरेट करके मैंने उसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया. सो दिस कुड बी कॉन्ट्रास्ट, right? On the other hand, this could also be contrast. So similarly, I could do the change in just color to create a contrast, right? So any element, if I change the size, if I change the color, if I change the texture, then I am able to create contrast. So if you look at this picture here, you see two arrows in two different colors. One is going down, one is going up, and then there is a contrast. Similarly, यहाँ पर black and white color में contrast को create किया गया है. Now, architecturally contrast कैसे create होगा? So if you look at this building here, it has a very nice gray base. And then it has this red staircase. So gray और red में इसने contrast करा है. Similarly, on the other side, there's a base is gray, and then all the windows that are happening in different colors. So they are kind of standing out. Then we have emphasis. अब emphasis क्या होता है? What does the name suggest? आप लोगों को क्या समझ में आता है emphasis से? कभी कभी हम कहते हैं कि फोकस मोर ऑन दिस सब्जेक्ट, है ना. जैसे अभी आप लोग पूछ रहे हो क्या मुझे इस पे फोकस करना चाहिए, क्या मुझे उस पे फोकस करना चाहिए. बट एज अ डिजाइनर, अगर आप किसी का फोकस, किसी का अटेंशन किसी पॉइंट पर ले जाना चाहते हो अपने डिजाइन में, तो उसको आप प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसिस के थ्रू कर सकते हो. ठीक है. नाउ लेट्स लुक. एम्फेसिस हाइलाइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजाइन. जैसे टाइम एंड अगेन आई गिव दिस एग्जांपल. ब्लैक फ्राइडे चल रहा है और ब्लैक फ्राइडे सेल लगी है सब जगह. ठीक है. तो लेट्स से आजियो इज गोइंग ऑन अ ब्लैक फ्राइडे सेल. So it will say Black Friday sale, and then it will say up to 70% off. So मैंने साइज भी टेक्स्ट का बड़ा कर दिया, और दूसरी चीज मैंने कलर को भी चेंज किया ताकि अटेंशन जो है वो यहां तक जाए. सो एज अ डिजाइनर आई वांटेड टू कन्वे कि 70% तक ऑफ है ब्लैक फ्राइडे पे, आजियो पे. तो वो मैंने आपको बता दिया और अपने डिजाइन के थ्रू बताया, और आपका एम्फेसिस इधर से ज्यादा इधर जाएगा बिकॉज एक कलर चेंज हुआ है, दूसरा फॉन्ट सबसे बड़ा है. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दिस. यहां पर एम्फेसिस कैसे है? एक सेंटर पार्ट है जो सबसे बड़ा सॉलिड सर्कल है, और उसके आसपास लाइंस हो रही हैं, बट आपका जो अटेंशन है वो इस मेन फोकस पॉइंट तक जा रहा है. राइट. Similarly, in this particular image, all the lines are radiating to the center and they are drawing your eye towards this point. So, आपका जो emphasis वाला point है, वो यहाँ center में है. Now look at this image carefully. What is happening? How is the emphasis done here? By changing the shape.
and by changing the color. राइट सो हम लोग अगेन एलिमेंट्स को प्ले करके एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं. अगेन लेट्स से पल्स पोलियो का कैंपेन है. ये स्पेस मुझे दिया गया है, यहां पर मेरी थोड़ी डायग्राम्स चलेंगी जिसमें मैं पोलियो के इफेक्ट्स दिखाऊंगी. एंड देन आई वुड वांट माय अटेंशन टू गो टू द फ्यूचर. जो लेट्स से पोलियो ड्रॉप्स का कुछ कैंपेन है, कोई डेट निकला है, वहां के लिए मुझे अटेंशन ड्रॉ करता है, तो मैं एम्फेसिस के लिए एक तो कलर चेंज करूंगी और फिर मैं डेट को बड़ा बड़ा लिखूंगी. लेट्स से टुमारो इज द पल्स पोलियो कैंपेन, सो 29th of November 24 है ना. तो उसमें हम लिखेंगे पोलियो ड्रॉप्स और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, जहां तक भी हमें बंदे को पहुंचाना है, नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, ऐसे करके हम अपने पल्स पोलियो कैंपेन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं. नाउ वेयर आई वांट द एम्फेसिस इज इंपॉर्टेंट. सो सेल में भी देखो, गोइंग बैक टू द सेल वाला पेज, अब अगर मैंने अप टू 70% ऑफ लिखा है, now as a designer I don't want the focus to go on this star where I am writing terms and conditions apply. तो ये बहुत छोटा है, ये हार्डली कोई देखेगा. कोई दूर से देखेगा तो उसको अप टू 70% ऑफ ही दिखेगा और वो भाग के आएगा, और लिमिटेड टर्म्स एंड कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, लिमिटेड आर्टिकल्स ओनली, ये सब उसको दूर से नहीं दिखता है. तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं एज डिजाइनर्स टू कन्वे द मैसेज और टू प्ले विद द यूजर, एंड यूजर्स माइंड. ठीक है, आप उसको क्या दिखाना चाहते हो? आप उसको बैलेंस दिखाना चाहते हो, आप उसको यूनिटी दिखाना चाहते हो, आप उसका अटेंशन कहीं तक ड्रॉ करना चाहते हो, आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हो ताकि उसका अटेंशन आए. तो वो कैसे आप क्रिएट करते हो एज अ डिजाइनर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द principles of design. Then we have movement. Now what is movement? Any idea what is movement? Movement directs the viewer's eye through the composition, leading them from one element to another. ये हम लाइंस के थ्रू, शेप्स के थ्रू, या फिर एलिमेंट्स को अलग अलग अरेंज करके एक सेंस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन दे सकते हैं. तो कैसे होगा मूवमेंट? लेट्स लुक हियर. व्हाट वी डू इज वी ट्राई एंड क्रिएट अ सेंस where the human eye moves from one point to another point. सिमिलरली अगर आप दूसरे पैटर्न में देखोगे, एक राउंड मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, एंड अगेन यहां पर भी एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है. सो ये शेप्स के थ्रू है. अब हम इसको कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं वो समझते हैं. लेट्स से मुझे एक प्लेन का ऐड करना है. एक नया कंपनी आई है और लेट्स से विस्तारा हैज मर्ज्ड विद एयर इंडिया. ठीक है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू मेक अ प्लेन, एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू नेक्स्ट इज आई नाउ वांट टू शो अ सेंस ऑफ मूवमेंट कि मेरा ये जो प्लेन है ये सब जगह जा रहा है. तो मैं इसके लिए I'm not sure इसे
कर्व्स बनते हैं कि नहीं. ओके, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग इन वेरी लाइट. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मूवमेंट हियर कि ये प्लेन आपको सब जगह लेके जाएगा. ठीक है, और इस पर मैं अपनी ब्रांडिंग कर दूंगी, एयर इंडिया. एंड I can put some location maps here, 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 that Air India will take you places. Now, how have I created a sense of movement here? भैया बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं ऐप पे क्लास नहीं आ रही. ऐप पे लिख रहे. ठीक है, so what have I done? I've tried to create a sense of movement using the flowy lines, curvy lines जिनमें movement है. Architecturally, how can I create movement? So what I do is, or what we can do is, we can create curves. जैसे इस बिल्डिंग में आप देखोगे जिसका फसाड है, इसमें कैसे कर्व्स है और कैसे ह्यूमन आई को डायरेक्ट करता है. सिमिलरली इस केस में भी there is a sense of movement and the eye moves along this facade. Moving on, we have pattern. Okay, let's talk about pattern. Now, what is pattern? It involves repeating elements जैसे shape हो गया, color हो गया, lines हो गया, to create a sense of rhythm and consistency within a design. So, अगर हम कोई चीज रिपीट करते हैं तो वो पैटर्न बनता है. जैसे हमारी डेली लाइफ के पैटर्न्स होते हैं. We wake up, you go to the office, you go to the school, you come back, do your homework, you know, go out, play with the other kids of the society, play with your friends, and then you go to sleep, and then this is a pattern which you keep on following. है ना. तो इसी तरह डिजाइन में पैटर्न कब बनता है? जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं. तो रेपिटेशन करोगे तो पैटर्न बनेगा. राइट. और पैटर्न से क्या होता है? व्हाई डू वी क्रिएट पैटर्न्स इन डिजाइन? लेट्स लुक एट दिस. फर्स्टली, जब हम डिजाइन में पैटर्न क्रिएट करते हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है. ठीक है, तो इसीलिए लेट्स से हम लोग कोई विजुअल इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं. लेट्स से हम लोग कुछ let's say we are designing a kids bedsheet. ठीक है, अगर एक बच्चे की बेडशीट है, I can choose very nice floral patterns. है ना. एक सनफ्लावर टाइप बना दिया, फिर मैंने क्लाउड्स बना दिए, और इसी चीज को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर करके मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया, समथिंग व्हिच कनेक्ट्स विद द चाइल्ड. Now, for example, if I'm going to do a same bed sheet, but now I have to do for an adult, I would not choose these, but I would choose something else and maybe go for some geometric shapes and create a pattern out of it. So why do we create patterns? We create patterns for visual interest. ठीक है, और कैसे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं? बाय रिपीटिंग समथिंग. ओके, सो पैटर्न जो है वो रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, अ चेस्ट बोर्ड. अ चेस्ट बोर्ड इज अ पैटर्न जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स जो है वो ऑल्टरनेटली ले किए हुए होते हैं. नाउ व्हाट इज एन इरेगुलर पैटर्न? यू सी हियर
नीचे इट्स क्वाइट डेंस और ऊपर आते आते देयर आर स्मॉल एलिमेंट्स, स्मॉल ट्राइंगल्स फ्रॉम दिस व्हिच कैन बी सीन हियर, but the exact synchronization in between the patterns or in between the elements is not there. So this is an irregular pattern and this is a regular, and we understood that we create patterns in order to create a visual interest. Now let's go back and see what all we have covered. So we studied about balance, which is about maintaining the visual weight in a design. Okay, then we talked about contrast, where we play with various shapes, colors or textures so that one thing stands out against the other. Then we talked about emphasis, where we again change any element of the design to draw the user attention to a particular point. Then we talked about movement. Movement may we create or we give a sense of direction to our designs so that the user eye moves along with the design. And then we do patterns to create visual effects. Now patterns could be regular or they could be irregular. Now any questions that you have till this stage? Awaiting questions. We'll wait for 5 minutes for questions before we move on to the other principles. Any questions till now? Okay, I assume there are no questions. So let's move on to rhythm. Now, what is rhythm? Rhythm is the repetition of visual elements to create a sense of organized movement. अभी तक हमने मूवमेंट पढ़ा जिसमें हम यूजर आई को डायरेक्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, अब आता है रिदम. रिदम क्या है? इसमें भी रेपिटेशन है विजुअल एलिमेंट्स का जिससे एक सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट आता है. ये हम पैटर्न्स के थ्रू, सीक्वेंसेस के थ्रू या फिर वेरिंग स्पेस बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं. Now you must be wondering what is the difference between rhythm and movement, because दोनों ही एक सेंस ऑफ डायरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, दोनों ही यूजर आई को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा रहे हैं, है ना. तो अगर मैं बात करती हूँ पैटर्न की,
या अगर मैं बात करती हूं मूवमेंट की या फिर रिदम की। सो मूवमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी पैटर्न। मूवमेंट में पैटर्न होना असेंशियल नहीं है, लेकिन रिदम में पैटर्न जरूर होता है। ठीक है, जब पैटर्न को रिपीट करते हैं और एक सेंस ऑफ मूवमेंट बनता है तो वो रिदम कहलाता है। लेकिन मूवमेंट जो है इंडिविजुअली, उसमें कोई पैटर्न का होना या ना होना जरूरी नहीं है। गॉट इट? Now we must all have used some music players, जिसमें हम लोगों ने म्यूजिक को अप डाउन होते हुए देखा है, म्यूजिक के रिदम्स को अप डाउन होते हुए देखा है। हम लोगों ने कई बार ऐसे बोला है लेट्स डांस टू द रिदम ऑफ द म्यूजिक, है ना। तो व्हाई डू वी से दैट? बिकॉज म्यूजिक में भी देयर इज रेपिटेशन, है ना। जो हमारे बीट्स है, जो हमारे सुर है, वो रिपीट होते हैं और फिर म्यूजिक बनता है, देन वी टेंड टू डांस टू दैट पर्टिकुलर म्यूजिक। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू डिजाइन, अगर आप किसी भी पैटर्न को इतना रिपीट करोगे या इस तरीके से रिपीट करोगे कि एक सेंस ऑफ मूवमेंट क्रिएट हो जाए, तो उसको रिदम कहा जाता है। अगर मुझे रिदम क्रिएट करना हुआ तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्लांट दिस हियर। लेट्स से दिस इज my graph along which I have to move। तो ये मेरी गाइडलाइन है और फिर मैं अपनी लाइंस को ड्रॉ करूंगी एक रिदम क्रिएट कर। राइट, अचीव हो गया रिदम। सेम पैटर्न है, सेम चीज है, वही रिपीट हो रही है और एक सेंस ऑफ मूवमेंट भी क्रिएट हो गया। रिदम अगर हम आर्किटेक्चरली या डिजाइन वाइज बात करें तो सी देयर इज दिस सेंस ऑफ मूवमेंट व्हिच इज हैपनिंग एंड रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है, जिसके थ्रू ये रिदम क्रिएट हो रहा है। Then we have unity. Now what is unity? Any idea what is unity? Unity refers to the harmony of all the elements in design. अगर मेरे डिजाइन में 3 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से मैंने शेप्स में प्ले किया है, मैंने कलर में प्ले किया है और मैंने टेक्सचर में प्ले किया है, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें इन सिंक है तो मेरे डिजाइन में यूनिटी होगा। ओके, क्यों हम यूनिटी रखते हैं डिजाइन में? ताकि एक प्लीजिंग होल बन के आए, ताकि जो ओवरऑल मेरा डिजाइन है वो बहुत ज्यादा गिच पिच, बहुत ज्यादा क्राउडी या गाउडी ना लगे। ठीक है, अगर कोई स्वेटर है, let's say I'm wearing this green sweater, maybe this green sweater would come with a green patch and then a yellow patch and then a blue patch, and then it would look very awkward or very weird, है ना। So how do we maintain unity in design, or how do we maintain good designs? By giving unity। तो अगर इसमें वीव अलग है, अगर इधर का वीव अलग है और इधर का वीव अलग है और इधर का वीव सेम है, तो मे बी इसमें 2-3 किस्म के वीव्स है, बाजू में अलग वीव है, तो मैंने इसको यूनिटी दिया है इन टर्म्स ऑफ कलर टू मेक इट अ कोहेसिव होल एंड फॉर इट टू अपीयर अपीलिंग। ठीक है, सो कैसे कैसे कर सकते हैं? सिमिलर कलर्स को, शेप्स को, टेक्सचर्स को यूज करके, एज वेल एज कंसिस्टेंट अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। सो अगर यहां पे यूनिटी है, so how is unity in this particular image? We have 9 boxes, all same size, all same color, okay, equally distributed or equal spacing you can say.
So it creates unity. Then in the second image, how do we have unity? We have unity through color and shape. Earlier, we had unity through color, shape, and size. In the second image, we have unity through color and through shape. And let's look at the third image. Here, we have unity through size and through shape, but not through color. So, हर एलिमेंट को ऑल्टर करके आप अपनी यूनिटी जो है वो चेंज कर सकते हो, बट ओवरऑल आपके डिजाइन एक लगने चाहिए. Now, if I have to create unity, how will I do it? So, in the previous image we saw, let's say I'm going to create big circles, small circles, and circles in various sizes. So, overall, I am going to play with circles. But if I look at this now, there is unity through shape. There is unity through shape and there is unity through color. Other way of doing it could have been unity through shape, size, and color. Got it? Moving on, have a look at this picture. How do you see unity? In this particular image, we see boxes of same size stacked on top of other, है ना? So इन सारे boxes का size same है, color same है, look same है, feel same है, और अलग अलग boxes हैं सबके सब जो individually अलग अलग लग रहे हैं, but एक साथ stack करके it appears as a unified whole building, right? Then comes proportion. Proportion का मतलब होता है relative size and scale of different elements within a design. जैसे हमने आजियो सेल बैनर की बात करी तो उसमें अप टू 70% ऑफ हमने सबसे बड़ा रखा, उसका प्रोपोर्शन हमने सबसे बड़ा रखा ताकि एक तो उसकी तरफ अटेंशन जाए, ठीक है, बट ऑल्सो अगर हम बात करते हैं उस ओवरऑल पोस्टर की तो उसका जो कनेक्शन था, इंटर रिलेशनशिप था विद ईच अदर, वो भी इंपॉर्टेंट था. इससे हार्मनी और बैलेंस क्रिएट होता है. लेट्स लुक एट दिस पिक्चर. घर इतना है तो पेड़ इतना बड़ा है. अब घर इतना है तो ह्यूमन बीइंग इतना बड़ा नहीं हो सकता. द ह्यूमन बीइंग हैज टू बी दिस साइज इन ऑर्डर टू फिट इनसाइड द हाउस, राइट? So once we look at proportions, this would be wrong and this proportion would be right. So proportion से हमें ये पता चलता है कि करेक्ट स्केल क्या है, करेक्ट साइज क्या है. हम नेचर में देखकर करेक्ट चीजों का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं. ह्यूमन बीइंग्स में भी अगर हम लोगों ने चेहरे की बात करी और हमारा चेहरा इतना बड़ा है तो द आई कैन नॉट बी दिस बिग. The eye has to have a certain proportion. So maybe this is the eye and this is the nose. And then this cannot be the nose. है ना? कोई कार्टून कैरेक्टर हम नहीं बना रहे हैं. अगर हम ह्यूमन फिगर बना रहे हैं तो फिर यहां पर हमारे जो हैं वो लिप्स होंगे एक सर्टेन प्रोपोर्शन में. तो अगर हमें किसी भी चीज का सही और गलत देखना है
कि वो चीज सही लग रही है या वो चीज गलत लग रही है, तो हमें उसका प्रोपोर्शन, उसका साइज, उसका स्केल जो है वो देखना पड़ेगा. Similarly, if I have a house here and I have to make a tree, so I'll make the tree like this, and then the human being who will fit inside the house will be almost half of the size of the house, so that, and the door would be bigger than the human being. So this is the correct scale. अब दरवाजा इस बंदे से छोटा, यहां तक इतना दरवाजा नहीं हो सकता, ये बंदा ऐसे करके थोड़ी जाएगा, right? So the relationship between various elements in a design is very essential. So this is wrong, this is right, and this is right. Again, if we see this picture, we have a basketball and then we have a baseball. तो इनके बीच में आपस का स्केल जो है वो असेंशियल है. अगर मुझे दो बॉल्स दिखानी है और मैंने कुछ बॉल्स बनाई है और मुझे दिखाना है ये बास्केटबॉल है या फिर ये क्रिकेट बॉल है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? आई विल वेरी इट इन साइजेस, एक दूसरे के साथ में रख के उनका रिलेशनशिप बताएंगे और फिर उन्हें आपस में कंपैरिजन करके देखेंगे. If we talk about the Taj Mahal, ठीक है, this is based on proportions, golden ratio, which is considered the perfect relationship. ठीक है, इसके जो टावर्स हैं, जो मिनरेट्स हैं, एंड इसकी जो मेन बॉडी है, उसके आपस का रिलेशनशिप, द साइज का रिलेशनशिप इज ऑल डन अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रेशियो. फिर है वैरायटी. अब वैरायटी क्या होती है? So variety adds interest and diversity to a design by incorporating different elements, जैसे अलग अलग shapes, अलग अलग colors, अलग अलग sizes. ठीक है, while too much variety can create chaos, balanced amount visual interest और experience और engagement को बढ़ा सकता है. So if you look at this image here, you will see a star, a circle, a star, a circle, a star, a circle. So it is kind of a pattern. फिर आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 हेक्सागन ट्राइंगल, हेक्सागन ट्राइंगल. ठीक है, सो यहां पर शेप्स के थ्रू, कलर के थ्रू वैरायटी जो है वो चेंज की गई है. सिमिलरली यहां पर शेप्स के थ्रू जो है वो वैरायटी दी गई है डिजाइन में. अगर मुझे वैरायटी क्रिएट करनी है तो मे बी आई कैन जस्ट चेंज द कलर, or sometimes I can change the shape as well. So इससे क्या होगा, हमारे डिजाइन जो हैं वो इंटरेस्टिंग बन सकते हैं, बट वी ऑलवेज शुड limit the variety to only 2 or 3 elements, otherwise it will create a chaos और बहुत ज्यादा खिचपिच हमारे डिजाइन्स में हो जाए. Look at this picture and tell me what is the variety that you see. So how do we see variety here? We see variety through a use of color. So a lot of colors can be seen on the facade of this church and उससे काफी variety आती है. Similarly यहाँ पर अगर हमें contrast देखने को मिलता था पिछली इमेज में, but हमें variety भी अब देखने को मिल रही है in terms of color. So now we have also understood that in a design there could be one principle or there could be an amalgamation of multiple principles. फिर आता है अलाइनमेंट. अब अलाइनमेंट क्या होता है?
हमने कई बार देखा होगा हमारी जो बुक्स प्रिंटेड होती है या हमारी जो नोटबुक्स होती है जिन पे हम लिखते हैं, हम लोग एक साइड से स्टार्ट करते हैं और बुक्स पे भी हमारा टेक्स्ट जो होता है वो जस्टिफाइड होता है, लेफ्ट राइट अलाइंड होता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट इट बिकम्स easier on the eye and it becomes interesting. इससे ऑर्डर आता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इससे हमारा टेक्स्ट क्लीन लगता है, स्ट्रक्चर्ड लगता है और एक प्रोफेशनल अपीयरेंस उसमें आती है। अभी जैसे मैंने गूगल वाली पेज की भी बात की थी, तो गूगल वाले जो वो है वो भी सेंट्रली अलाइंड है। ऐसा नहीं कि गूगल इधर लिखा है, सर्च बार इधर है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू, राइट? दे आर अलाइंड एंड दे आर सेंट्रली अलाइंड। सो सिमिलरली अगर आप ये वाला पार्ट देखते हो, एक ही चीज, एक ही डिजाइन, सेम ऑब्जेक्ट अगर हम अलाइनमेंट में रखते हैं और अलाइनमेंट में नहीं रखते हैं, सो सी हाउ दिस अपीयर्स क्लीनर, नाइसर, है ना, and this looks like a mess. So we don't want messy designs. We want something which is organized, easy on our mind and makes the overall design look better. Similarly अगर मैं इस इमेज में देखती हूँ, यहां से अलाइनमेंट है, यहां से अलाइनमेंट है और इस केस में कोई भी अलाइनमेंट नहीं है। So this any day looks better. तो हमें क्या करना चाहिए अपने डिजाइन्स में? We should always align the elements in our design. So again coming back to Google, so we have Google and then we have the search bar. So there is central alignment when it comes to the Google and the search bar. Okay. Similarly in Microsoft Word also you will see justification of text from the left, justification of text on the right, or you will see centrally aligned text, or you will see text aligned on both the sides. So it appears easier for the eye और organized हो जाता है हम लोगों के लिए पढ़ना। तो इसी तरह डिजाइन में भी हम अलाइनमेंट करेंगे तो द डिजाइन विल बिकम easier for us to understand and interpret. खिड़कियों में देखो अलाइनमेंट कैसे करा गया है। The windows have been aligned properly on top of each other, same sizes, to give this building a cleaner look. है ना? So with this we have understood almost all the principles of design, जिसमें सबसे पहले था बैलेंस, जिससे हम अपने डिजाइन्स के अंदर विजुअल वेट को बैलेंस आउट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट, जिसमें हम एलिमेंट्स में प्ले करते हैं और एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एम्फेसिस, जिससे हम डिजाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट करते हैं। मूवमेंट, जिससे हम व्यूअर की आई को डायरेक्ट करते हैं थ्रू द डिजाइन। पैटर्न, जिसमें हम रेपिटेशन करके रिदम और कंसिस्टेंसी लाते हैं। रिदम, जिसमें विजुअल एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है, रिदम में पैटर्न्स होते हैं। यूनिटी, जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स एज अ यूनिफाइड होल बिहेव करते हैं और पूरे डिजाइन को एक बनाते हैं। प्रपोर्शन, जिसमें हम साइज और स्केल ऑफ द एलिमेंट्स को विद इन द डिजाइन खास तौर से ध्यान देते हैं। फिर वैरायटी, जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि डाइवर्सिटी और इंटरेस्ट हमारे डिजाइन में ऐड हो। और फाइनली अलाइनमेंट, जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को अलाइन करते हैं एक तरीके से कि वो ऑर्गेनाइज्ड लगे।
right? So these are the principles of design, and once you start making or start drawing, कुछ भी आप बनाओ, लेट्स से पोस्टर डिजाइन में हमें प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस देखना पड़ता है, अपने पूरे के पूरे कैनवस को हमें बैलेंस करना पड़ता है. कॉमिक स्ट्रिप्स हो गया, ठीक है, कॉमिक स्ट्रिप्स हो गया. व्हाट एल्स डू वी हैव पर्सपेक्टिव में भी हमें स्केल और प्रोपोर्शन का ध्यान रखना पड़ता है. आगे वाला ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और पीछे वाला ऑब्जेक्ट छोटा होगा, राइट? और बताइए, और कहां पर हम अपने प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को यूज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट ड्राइंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वहां पर प्रोपोर्शन का ध्यान रखना पड़ता है, साइज का ध्यान रखना पड़ता है. Okay, then what else do we have? So majorly in our drawing segment we get to use our principles of design, and in every particular, let's talk about logos, maybe let's talk about compositions. So what we do is, if we move our design and revolve our design around the principles of design, our outcome would be much better. अगर मुझे एक पोस्टर डिजाइन करने को बोला गया है स्वच्छ भारत पे, तो लेट्स से मैंने यहां पर स्वच्छ भारत लिखा, or most of the space in my poster I have given to Swachh Bharat, and now there is nothing else left, and then I'll say keep India clean, and I'll put my mascot here, or small, or just a small message, or maybe a picture jahan pe kachra wachra hoga, and then I go again and do something on the principles of design, और मैं एक balanced approach करती हूँ. मैं यहाँ पर स्वच्छ भारत लिखूंगी बड़ा बड़ा. I'll put my nice mascot here for स्वच्छ भारत. इसके हाथ में एक झाड़ू होगा, बकेट होगी, ठीक है, इसने एक अच्छी सी कैप पहनी हुई है क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, and all those things. And then I will write, leave some space and write keep India clean. फिर मैं लिखूंगी clean India, healthy India, ठीक है. And then I will write scan, maybe put a QR code on where to find the nearest dustbin, and then I write some contact details in case of any gandagi around. And look at this, and then look at this. So अगर मैंने अपने डिजाइन में principles of design लगाए और नहीं लगाए, तो then my outcome, my result will not be as good. So in order to improvise on my design and to make neater designs, easier to understand, better readability, and all those things, we need to implement the principles of design. So हर चीज में हम वो करेंगे. जब हम कॉमिक स्ट्रिप्स बनाएंगे तब भी हम विजुअल वेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां पर भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन आ जाएंगे. लोगो में अगर मुझे बैलेंस क्रिएट करना है, तो मूवमेंट क्रिएट करनी है, तो वो सब चीजें भी मैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के थ्रू कर सकती हूँ. So try and keep these principles in mind every time you look at a question, you look at a PYQ, you look at a mock question, and try and design using these principles and see the quality of the drawing that you will be able to get. I hope this session was informative. I do not have access to the chat here. Okay, so I might not be able to answer the questions, but please drop your questions in the comment section. I'll have a look and get back to you. Meanwhile, I'm going to end the class. Thank you so much for watching or attending this lecture, and I hope it was helpful, it was fruitful, and I look forward to help you in the upcoming classes. Thank you so much. Goodbye, everyone.